So, doctors, as far as our last lecture is concerned, we have finished nucleic acid chemistry, nucleic acid structure, but उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हमें आज लगाने, कुछ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, कुछ बॉन्ड्स भी देखने हैं, उसकी कुछ बारीकियां भी समझनी. तो let us review nucleic acid. Nucleic acid is the acidic material present in the nucleus. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज सबकी आती रहनी चाहिए. मुझे कोई भी सोता हुआ मुझे मिला, मैंने उसे रिमूव कर दिया. Okay. So nucleic acid is the acidic material present in the nucleus that may be of two types, either DNA or RNA. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whatever the molecule is, whether it is DNA or it is RNA, but 101% it will be a polynucleotide. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Polynucleotide are the many units of nucleotides. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. One single nucleotide consists of nucleoside and phosphorus. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As far as side is concerned, side is consist of two parts. Which one? Pentose sugar, Pentose sugar and nitrogen base. Pentose sugar and nitrogenous base. Pentose sugar are of two types. Which one? ribose and deoxyribose. Amir Zadi. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Perfect. What is the difference between DNA structure and RNA structure, sugar, ribose sugar and deoxyribose sugar? What is the difference? Sir, DNA is deoxyribonucleic. Yes, that I agree, ribose and deoxyribose. But what is the difference between ribose sugar and deoxyribose sugar? Arey. Ayan. Yes, sir. What is the difference between ribose and deoxyribose sugar? In ribose sugar there is the OH, and in deoxyribose sugar the oxygen atom is not present, only hydrogen is there. Perfect. At second position in ribose, there is hydroxyl group. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Deoxyribose sugar, there is no oxygen, only hydrogen is there at second position. Am I right? Yes, sir. Perfect. Perfect. So ribose and deoxyribose. Then nitrogenous base again of two types. One is Purine And pyrimidine. pyrimidines. Purines and pyrimidines. Purines is double ring structure. Agree? Yes, sir. Pyrimidine is single ring structure. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So purine has two bases. Which one? Adenine and guanine. Adenine and guanine. Pyrimidine has three bases. Which one? cytosine, Thymine and uracil. Perfect. Perfect. इस तरीके से मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया था, और उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं दोस्तों अपने. वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उसको भी समझिए. Polynucleotide is what? Fatafat. What? many units of nucleotide. What is type? Nucleoside and phosphoric acid.
pentose sugar and nitrogen Sugar, base. ribose base. base. Nitrogen base. ये कैसा था? CHO4. एसिडिक। परफेक्ट। पेंटोस शुगर Yes, sir. मतलब कार्बन, पेंटोस शुगर मतलब कार्बन कितने? 5. पेंटोस शुगर ऑफ टू टाइप, which one? ribose and deribose. Ribosome and Ribose, deoxyribose. राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर में क्या था बच्चों? जो 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 and 5 is CH2OH. This one is 5th. Agree? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेकंड पोजीशन पर राइबोस के पास क्या था? OH. डीऑक्सीराइबोस की यदि बात करते हैं तो इसमें भी वही 5 हैं, 1 2 3 4 और यहां पर CH2OH का 5th। लेकिन यहां पर क्या था? H. Hydrogen. दोनों ही शुगर कैसी थी? कार्बन 5। अग्री? नाइट्रोजनस Yes, sir. बेस वो 2 टाइप के थे, कौन कौन से? Purines. Purine. Purine and pyruvate. Pyrimidines. प्यूरीन्स and pyrimidines। प्यूरीन्स कितने मेंबर की रिंग थी? इसके 2 पार्ट थे, कौन कौन से? Adenine and guanine. परफेक्ट। प्यूरीन जो था ये कितने मेंबर था? 9 members. 9 Nine. members. 9 member. 9 member. 6 members. पोजीशंस क्या क्या बताई थी? 1379. उसने क्या बताई थी? 1 and 3. 1 and 3. यहां तक आपने को बिल्कुल समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है बच्चों वो PO4 के फॉर्म में होता है, इसी की वजह से डीएनए कैसा होता है? एसिड। Acidic. अब इसके बाद बच्चों आपका पहला असाइनमेंट, इससे बनेगा कौन सा मॉलिक्यूल? RNA. RNA. DNA. 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 के बीच का डिफरेंस लिखना आपका आज का असाइनमेंट। जैसे थोड़ी देर के लिए एक डिफरेंस यदि मैं बताऊं तो सिंपल है, इसमें शुगर कौन सी? Ribose. Deoxyribose. दूसरा, इसमें एडेनाइन के साथ यूरेसिल की पेयरिंग होती है, जबकि इसमें एडेनाइन के साथ थायमिन की पेयरिंग होती है। परफेक्ट। ये जो है सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड, और ये कैसा है? डबल स्ट्रैंड। परफेक्ट। ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, Unstable. दिस वन इज Stable. ऐसे मैंने 4 लिखे हैं, एंड हाउ मेनी आई एक्सपेक्ट? 10. 10 points. ये आपका आज का असाइनमेंट है। अब आगे बढ़ता हूं। मैंने कल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, यदि थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी तो आपको स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे बनाता हूं। अब मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, अभी तक ऑक्सीजन ऊपर होता था, अब मैंने नीचे की तरफ कर दिया। उसके पीछे का कारण है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का होना। 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, ये डंडे इसलिए बनाता हूं क्योंकि 4 वैलेंसी 4 होती है ना। यहां पर यदि कार्बन है तो कार्बन की 1 2 3 और 4 वैलेंसी हो गई। अग्री? Yes, sir. अग्री?
चलिए अब मुझे क्या करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 किधर से लूं, इधर से लूं, ऊपर से या नीचे से लूं? नीचे क्लॉकवाइज 1 2 3 4 इसको मैंने कह दिया 5 डैश या 5 प्राइम। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 और 3 बॉन्ड कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। Phosphodiester bond. 1 2 3 4 5 3 कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर। Phosphodiester bond. फ्री, तो फ्री कौन सा रह गया? 3 dash 3 dash. 1 2 3 4 5 फ्री कौन सा रह गया? 5 5 dash. dash 5 dash. 2 3 4 5 और 3 कौन सा बॉन्ड? Phosphodiester bond. 1 2 3 4 और 5 कौन सा बॉन्ड? Phosphodiester. Diester bond. Phosphodiester bond. 3 dash. Agree? Yes, sir. Agree? yes sir Yes, sir. चलिए अब क्या करना है इसमें? इफ आई राइट ए देन आई शुड राइट हियर व्हाट? T T. thymine Thymine. If I write G then I should write C. cytosine C. 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 Yes, sir. Yes, sir. जो स्ट्रक्चर हुआ बच्चों केमिकल बैकबोन स्ट्रक्चर हुआ, इसी केमिकल बैकबोन को इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA डीएनए। इसी का दूसरा नाम chemical केमिकल backbone बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल बैकबोन, केमिकल बैकबोन ऑफ डीएनए। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि बच्चों प्रोटीन में व्हाट वे दे प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शियरी स्ट्रक्चर सो मेनी बॉन्ड्स एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर नो मोर बॉन्ड्स बट कॉम्प्लिकेटेड। अग्री? Yes, sir. Same Yes, here sir. we will write the name of the bonds क्योंकि this is the permanent question of need. The number, what are the names of bonds in DNA? Number one hydrogen bond Hydrogen bond. Hydrogen. between two nucleotide base nitrogen base between two bases, between two nitrogen bases, between two nitrogen bases. Agree? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Number two is Phosphodiester bond. phosphodiester bond phosphodiester bond between two nucleotides between two nucleotides. भाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, एक और एक दो, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच में बन गया फॉस्फोडाइस्टर। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड अनदर न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, one nucleotide another nucleotide phosphodiester bond. So phosphodiester bond between two nucleotides. One more bond is there, Glycosidic bond. N glycosidic bond between base and sugar and sugar. नाइट्रोजनस बेस और शुगर, यानी यहां जो एडेनाइन जुड़ा हुआ है ये शुगर से जुड़ा है, ये बेस ये शुगर, ये शुगर ये बेस, ये बेस ये शुगर, शुगर बेस शुगर बेस शुगर बेस, तो बेस और शुगर के बीच में एक बॉन्ड होगा। ग्लोरी अग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो यदि बेस प्यूरीन है, मतलब कौन कौन से? Adenine Adenine one. guanine. और यदि बेस pyrimidine है, PU1PY, यदि प्यूरिन है तो क्या और pyrimidine है तो क्या? क्योंकि बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड बना ना, शुगर तो भाई यदि हमने डीएनए बनाया तो शुगर तो दोनों में ही डीएनए, लेकिन बेस एक में प्यूरिन एक में pyrimidine, जहां जहां पर G है वो प्यूरिन है, जहां जहां पर A है वो प्यूरिन है,
और जहां जहां पर सी और टी है पिरिमिडीन है। तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि क्या क्या बॉन्ड बनेगा। तो जब भी प्यूरिन होगा तो शुगर का कार्बन 1 Sc मतलब शुगर कार्बन 1, शुगर कार्बन 1 एंड नाइट्रोजनस बेस 9, 1379 पर नाइट्रोजन है। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर ये एडेनाइन मतलब कौन हुआ? प्यूरिन। तो यदि प्यूरिन शुगर से जुड़ा है तो नाइट्रोजन कौन से नंबर का होगा? 9. 9। 9. शुगर का कार्बन कौन सा होगा? 1। 1. पाइरिमिडीन बेस है तो शुगर का कार्बन यहां भी 1 और पाइरिमिडीन का भी 1। 3. ये नीट का सवाल था, केवीपीवाई का सवाल था, लिख दिया मैंने यहां नीट, लिख दिया मैंने यहां नीट कि एफ इसका तो हमेशा ही 1, शुगर कार्बन 1, शुगर कार्बन 1, चाहे प्यूरिन से जुड़े चाहे पिरिमिडीन से जुड़े, चाहे ए जुड़े, टी जुड़े, सी जुड़े, यू जुड़े, जो जिसको जुड़ना है जुड़े, बट शुगर तो हमेशा 1 नंबर पे है। लेकिन प्यूरिन यदि जुड़ रहा है एडेनाइन, ये डबल लिंक स्ट्रक्चर, तो इसके 9th नंबर का नाइट्रोजन यहां जुड़े, और यदि पिरिमिडीन है तो इसके 1 नंबर का ही नाइट्रोजन यहां जुड़ेगा। तो 1-1 का बॉन्डिंग होता है पिरिमिडीन में और 1-9 का बॉन्डिंग होता है प्यूरिन। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ने अनुराधा क्षीरसागर, Yes. बहनेश अग्रवाल, परी पाटिल, स्वराज Yes, पांडे, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हनी जैन, Yes, sir. अग्री? अग्री? Yes, sir. मैं समझता हूँ बहुत आराम से और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। मुझे ये असाइनमेंट चाहिए बस, ये और अब बच्चों मैं थोड़ी सी भारी बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ी सी भारी बात बताने जा रहा हूँ, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको 2 मिनट शांति से देखो और सर बताओ कि सर नहीं यहाँ नहीं समझ में आया, तो तुरंत बताओ, क्योंकि चीज मैं थोड़ी सी भारी बताने जा रहा हूँ जो तकलीफ दे सकती है, इसलिए एक बार सोच लो और मुझे बताओ प्लीज। Sir, please repeat that point. Which point? Which point? Third point. कौन सा थर्ड पॉइंट बेटा? बॉन्ड वाला कि ये वाला? Sir, bond वाला. बॉन्ड वाला, ये वाला, ये वाला ग्लोरी? ग्लोरी दिस वन? Yes. ध्यान दो बेटा ग्लोरी, यहां पर देखो 3 चीजें जुड़ती हैं, एक शुगर, एक बेस और एक फास्फोरस। ग्लोरी, डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको तो मैंने जोड़ दिया 3-5-3-5, अग्री? Yes, sir. तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। Yes. मैंने क्या किया, शुगर तो ले ली 5 कार्बन वाली, ये पेंटोस शुगर हो गई, अग्री? Yes, sir. इससे जब मैं बेस को जोड़ता हूं तो मैंने तो अपनी सुरक्षा सावधानी के लिए मैंने अल्फाबेट लिख दिया ए, लेकिन अपने आप में एडेनाइन एक स्ट्रक्चर है ना, एडेनाइन एक स्ट्रक्चर है, बराबर? Yes. ये शुगर और वो स्ट्रक्चर जो कल मैंने दिखाया था, यदि आपको याद हो तो मैंने प्यूरिन और पिरिमिडीन के 2 स्ट्रक्चर दिखाए। डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. उस स्ट्रक्चर में यहां पर इससे और 2 रिंग्स जुड़ने वाली, यहां पर इससे और 2 रिंग्स जुड़ने वाली, वो यदि आप मुझसे पूछे कैसी जुड़ने वाली है तो मैं थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरह से बता सकता हूं आपको। कैन यू इमेजिन, ये ऐसा प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ग्लोरी? Yes, sir. इसका जो 9th नंबर का नाइट्रोजन था
भाई इसमें 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, पहली पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे, 7वीं पोजीशन पर और 9th पोजीशन। तो मान लेते हैं इसका यहाँ पर पोजीशन यहाँ से शुरू किया इन्होंने 1 2 3 4 5 5 6 7 8, यहाँ पर 9th नंबर का है, उसका 9th नंबर का नाइट्रोजन और इसका पहले नंबर का कार्बन, इस तरह से वो जुड़ेगा। समझी बात को आप? यस सर। परफेक्ट। तो यही मैंने वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद अभी और देख लो, कोई डाउट हो तो मुझे अभी बोलो, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी भारी चीज मैं बताने जा रहा हूं और शायद उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी आपको करने पड़े, बायो में मैथ्स करना पड़े। प्लीज चेक। सर वो बॉन्ड का क्या क्वेश्चन बताया था नीट का? ये वाला ना? नहीं, उससे पहले बॉन्ड्स का। यही तो लिखा ना नीट वाला, डॉक्टर गायकवाड़, यही तो लिखा ना बेटा? हाँ सर। नहीं सर, वो बॉन्ड सबसे पहले जब बताया था, स्टार्ट किया था तब। हाँ, नहीं लिखा है क्या? कौन सा बोल रही हो? नहीं, केमिकल बैकबोन के नीचे जो बॉन्ड्स लिखा है ना तब। यहाँ पर हाँ यही तीनों बॉन्ड पूछे जाते हैं, ये मैं कह रहा हूं, नीट में यही तीनों बॉन्ड पूछे जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को नहीं पूछा जाता। इसके बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाता है। जैसे हाँ। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, बराबर। यस सर। सेकेंडरी में पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर। यस सर। थर्ड in tertiary structure along with peptide bond, along with hydrogen bond, there are so many more bonds. Dr. Mohadikar, agree? Yes, sir. But here in that was polypeptide, it is polynucleotide. Here are only 3 bonds. There are only 3 bonds: hydrogen bonds, phosphoester bond, and N glycosidic bond. This takes place between 2 base. This takes place between 2 nucleotides. This takes place between base and sugar. Madhura, understood? यस सर। परफेक्ट। बढ़े आगे बच्चों। सर। Yes, sir. देखिए। Sir, excuse me, sir. Yes, excuse. Sir, in front of G and C, you have put a triple bond, but in A and T, you just have a double bond. Why so, sir? This is the play of valency. Why carbon show 4 valency? Dr. Mohadikar? It has four electrons less to form an octet. It has 4 electrons. Agree? Yes, sir. Therefore, it is its valency is 4. Perfect. Yes, sir. In the same way, adenine thymine has 2 free valencies. Therefore, it binds with T only. Why Na is bind with Cl and not with the other? Because Na और Cl की valency एक दूसरे से neutralize होती है. Dr. Mohadikar. Yes, sir. Agreed? Yes, sir, I got it. Perfect. Perfect. So, as I told you in peptide bond, when this or such structure, keep on increasing, again it has to twist it. Agree? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So when it start twisting, because whatever the structure we learn, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो अमीनो एसिड हो, जो भी हो, यदि ज्यादा अमीनो एसिड रेसिड्यूज होने लगते तो उसमें कॉइलिंग होने लगती, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड. Agree? Yes, sir. Yes. In the same way, I am going to start twisting in DNA structure too.
like this. So this is definitely 5 dash 3 dash 5 dash 3 dash. So there will be what? 3 dash 5 dash. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Agree? And because of this reason, since this secondary helical structure, सारे जितने भी सेकेंडरी हमने देखे हेलिक्स ही थे यार, प्रोटीन में भी सेकेंडरी हेलिकल था. परफेक्ट. चलिए, so because of this, here is a minor groove. This one is मेजर ग्रूव. अब माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव, जब ये ट्विस्ट होता है बच्चों, जब इसकी ट्विस्टिंग होती है तो ठीक वैसी ही ट्विस्टिंग है जैसे अभी इस बैच में जितनी भी गर्ल्स बैठी हुई हैं. यदि ध्यान से देखें तो आप अपने बालों की जो चोटी बनाती हैं बच्चों, उसमें एक चोटी के ऐसे 3 हिस्से निकालती हैं, फिर एक को इसमें, दूसरे को इसमें, तीसरे को इसमें, चौथे को इसमें, ऐसे 3 इसमें आप ऑल्टरनेट पे करती चलती हैं. अग्रीड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं कि 3 स्ट्रैंड ना निकाले जाएं, 2 ही स्ट्रैंड निकाले जाएं, और 2 स्ट्रैंड में एक भी जो तीसरा निकाला उसको मेन एक्सिस मान लिया जाए, और एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, इसको कांस्टेंट रहने दिया. ठीक वैसे ही जैसे इसके बीच में मैं एक्सिस बना. अग्री? अग्री? तो बच्चों Yes, उसमें sir. थोड़ा सा समझना क्या होगा, बहुत कॉमन सेंस एकदम. इस एक्सिस पर मैं जब पहले स्ट्रैंड को उठाता हूं तो पहले स्ट्रैंड की जो हाइट होगी, भाई यहां से पहला स्ट्रैंड उठ के जिस हाइट से आएगा, क्या आपको नहीं लगता इसके बाद जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा उसको डबल हाइट क्रॉस करनी पड़ेगी? Yes, sir. भाई फिर से समझाता हूं. ये मैंने एक स्ट्रैंड लिया, एक स्ट्रैंड पर मैंने जब एक स्ट्रैंड को ऊपर से डाला, तो ऊपर से डालने के बाद जब दूसरा मैं डालूंगा तो उसको इसकी भी हाइट क्रॉस करनी है और इसके ऊपर का जो स्ट्रैंड है उसकी भी हाइट क्रॉस करनी है. अग्री? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. जब वो डबल हाइट क्रॉस करेगा तो एक थोड़ी सी मेजर ग्रूव बनेगी. ग्रूव मतलब वो कैविटी, क्योंकि वो उतने ऊपर से उठेगा ना, फिर दूसरा हो तो उसको उसके ऊपर से उठना पड़ेगा, फिर इसको ऊपर से उठना पड़ेगा. यानी हर बार अल्टरनेट में एक बार माइनर ग्रूव और एक बार मेजर ग्रूव, ये चलता रहेगा. अग्री? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था, क्या आपको पता है हु वाज द डिस्कवरर? वाटसन एंड Watson Crick. got Nobel Prize in 1953. Okay, but what he told, he one turn, this is one turn. I'm making it bit dark. This is one turn. And this one turn is having the distance 34 angstrom. How much angstrom? 34. 34. And in this turn, there will be how many base pairs? 10. 10 base pairs. मैंने लिखा यहाँ पर BP. Base pairs मतलब क्या होता है बच्चों? Turn. एक बेस पेयर, GC एक बेस पेयर, AT एक बेस पेयर. टोटल कितने बेस पेयर है इस स्ट्रक्चर में? 3. अग्री? 3. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेकेंड बेस पेयर, थर्ड बेस पेयर. तो ऐसा ट्विस्टिंग करने के बाद, और ये ट्विस्टिंग क्या बताई थी मैंने, वही जब कार में बैठते हैं 3 से ज्यादा लोग, मम्मी थोड़ा आगे हो जाओ, दीदी थोड़ा पीछे हो जाओ, भैया थोड़ा आगे हो जाओ, बस ये आगे पीछे की एडजस्टमेंट में उसमें ट्विस्टिंग आ जाती है, और उस एक टर्न में 10 बेस पेयर बैठ जाते हैं. जैसे AT, GC, AT, AT, GC,
80 80 80 कितने हो गए? ये हो गया 80 1, GC 1, 80 3, 80 4, GC 5, 80 6, 80 7, 80 8, 89 और ये GC 10। ऐसे 10 बेस पेयर होते हैं। क्या दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अग्री अग्री Yes, बच्चों? Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अनुराधा क्षीर सागर, दिनेश शिंदे, एकता वडनेरे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। परफेक्ट। कौन बोला? 3.4. सर दिनेश। Dinesh. So the distance between two base pair, between two base pairs कितना हुआ? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अग्री अग्री? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने जो आपको बताया था, अभी अपन ने देखा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन चल रहे थे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब अपन चलते हैं तो उसका डायमीटर निकल कर आता है, इसका एक डायमीटर निकल कर आता है। ठीक वैसे ही जैसे चोटी को काटने पर आपको एक डायरेक्शन दिखेगा, आप ऐसे उठा रहे हैं या ऐसे उठा रहे हैं। तो यदि क्लॉकवाइज आप लेते हैं तो उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन का डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। मेरे साथ नोट भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। एक टर्न 34 बेस पेयर, इसको मैंने लिखना चाहिए 34 एंगस्ट्रॉम 10 बेस पेयर पर टर्न। पर टर्न एक टर्न पर 34 एंगस्ट्रॉम और बेस पेयर्स की संख्या कितनी? 10 बेस पेयर्स। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। डायमीटर कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 Armstrong. 20 एंगस्ट्रॉम। बट उसके बाद एक चारगाफ करके साहब थे, उन्होंने अपने कुछ रूल बताए। चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या कहता है बच्चों? जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए बताया गया, चारगाफ रूल कहता है कि A plus T upon G plus C is इक्वल्स टू 1। किसी भी डीएनए में यदि आप A और T को जोड़ लो और G और C को जोड़ लो और दोनों का एक रेशियो देखो, तो जाहिर सी बात है यार वो कांस्टेंट रहेगा। भाई जितना होमोसेपियंस होने के नाते मुझ में है उतना सारे ह्यूमंस में होगा, वो फिक्स है। मतलब वो स्पीशीज का अपना फिक्स होता है, कांस्टेंट एंड फिक्स फॉर अ स्पीशीज एंड फिक्स फॉर अ स्पीशीज। फिक्स फॉर अ स्पीशीज, वो फिक्स हो। भाई यदि किसी में 80 GC रेशो 2/3 है तो 2/3 उस सारी स्पीशीज में 2/3, उसके सारे इंडिविजुअल में 2/3। यदि हम में 5/4 है तो सारे इंसानों में 5/4। यदि कैटल्स में 9/7 है तो सारे में 9/7। वो डिपेंड करता है, लेकिन 9/7 तो 9/7, सारे बुफेलोज में 9/7। यदि काउज में वो 3/4 है तो सारी काउज में 3/4 स्पीशीज में। बाकी सबका अलग अलग होगा, स्पीशीज का अपना एक फिक्स होगा, उस स्पीशीज के मेंबर का सबका फिक्स होगा, हर स्पीशीज का अलग अलग होगा। स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन दूसरा, ये तो पहला रूल। दूसरा रूल और सिंपल है। क्या आप जानते हैं, यदि मैं कहूं कि A plus G अपॉन T plus C इक्वल्स टू 1, तो क्या आप अग्री हैं इस बात से? एनीवन? व्हाट आई एम टेलिंग? A plus G मतलब कौन? Urine. Urine. प्लस C मतलब कौन? Pyrimidine. Pyrimidine. बच्चों किसी भी हाले सूरत यूरिन इक्वल्स टू पिरिमिडिन तो होगा ही ना। अरे भाई जितने G होंगे उतने ही C होंगे। अग्री और नॉट?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. उसको घुमा के लिख दिया तो उलझ गए आप लोग। उसको कुछ नहीं लिखा, चारगाफ में क्या लिखा है, PU इक्वल्स टू PY। इन शॉर्ट, सहमत हैं आप इस बात से? Yes, sir. अरे भाई हो सर। गई ना। यदि मैं किसी से डबल बॉन्ड बना के जोड़ रहा हूं तो जितना मैं होऊंगा उतना ही अपोजिट तो होना पड़ेगा, तब तो जुड़ेगा। अग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. सिंपल यार, उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्टेड फॉर्म में दिया। बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज क्लियर है आपको? यदि क्लियर है दोस्तों तो मैं फिर आपको कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूं, बट प्लीज चेक। और आज सभी बच्चों का नंबर आएगा आंसर देने का। इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास, ऑल 37 मस्ट हैव आंसर्स। Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज। Sir, what is that third bond under that chemical backbone? हु इज रेडमी? पहले मुझे बताइए, हु इज रेडमी? हु इज रेडमी? मैं रिमूव कर दूंगा। हु इज रेडमी? हु इज एंटर्ड विथ रेडमी? प्लीज टेल मी। बच्चों, रेडमी नाम से कौन एंटर किया है मुझे बताइए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। फिर आप नहीं मानोगे आप। मैं हूँ सर। कौन? अरे मैं कौन? अरे मैं कौन भाई? प्रज्योत। कौन? प्रज्योत। नाम फिर से बोलो। प्रज्योत। प्रज्योत। प्रज्योत Yes. तुम्हारा मैं रिमूव कर रहा हूं। प्लीज एंटर विथ योर नेम, अदरवाइज आई विल रिमूव। प्लीज एंटर विथ योर नेम। Okay. ओके, मैं क्या कह रहा था बच्चों? यस, क्या कह रहा था बुला दिया। वह भी क्या बता रहा था बच्चों में? Sir, वो doubt. You were मतलब वो asking question. मैं क्वेश्चन देने वाला था, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर क्या आप फिर से एक बार वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्चुअली आई वाज गॉट डिस्कनेक्टेड सो आई डिडंट फॉलो व्हाट यू टॉट। कौन सा सुने? ये वाला सर, राइट में जो भी लिखा है आपने। जो भी लिखा है ना बताओ ना, क्या लिखा है? कोई इतना इरेलेवेंट थोड़ी लिखा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया? सर वो पूरा नहीं समझ में आया सर। अरे तो क्या एक्चुअली आई लिखा वाज है? गॉट डिस्कनेक्टेड हाँ हाँ भाई, मैं समझ गया। क्या लिखा है ये सब? ये क्या लिखा है? Chargaff rule or चारगाफ रूल। परफेक्ट। yes. दिस चारगाफ रूल, दो रूल्स लिखे। देयर आर टू रूल्स फॉर चारगाफ। Two rules for Chargaff. One is a plus t upon g plus c is 1 and a plus g upon t plus c equals to constant. No problem. I'm in class. बताइए। Okay. अच्छा। अच्छा।
सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था बच्चों, किसी पेरेंट्स के कॉल आते हैं तो टाइम टेबल देख कर कॉल करें। आज अपनी बैच का तो नहीं था किसी पेरेंट का, बट फाइन। एनीवेज, सो जुनैद, आर यू देयर जुनैद? Yes, sir. जुनैद, दिस इज चारगाफ रूल, और चारगाफ रूल कुछ और नहीं बच्चे, ये जो मैंने 10 बेस पेयर बनाए हैं, डू यू अंडरस्टैंड दिस कि वन टर्न में 10 बेस पेयर होगा? Yes, sir. If there are 10 base pairs, then definitely जितने प्यूरीन्स होंगे उतने ही पिरिमिडीन्स होंगे। अग्री? Yes, sir. वही मैंने लिखा है, a plus g upon t plus c equals to 1, और वो मैंने नहीं लिखा, वो तो किसने बताया है? चारगाफ साहब ने बताया। परफेक्ट। Okay, sir. और दूसरा, चारगाफ साहब ये कहते हैं कि यदि आप टोटल पूरे डीएनए को, जो कि बहुत लंबा थ्रेड है दोस्त, इतना लंबा थ्रेड है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, मैं बोलूंगा तो आप लोग शायद शॉक्ड हो जाएं, इतना लंबा थ्रेड है कि अर्थ टू मून आप 6 राउंड्स लगा सकते हैं। कैन यू इमेजिन? अर्थ टू मून यू कैन हैव 6 राउंड्स। इतना लंबा थ्रेड है वो। इतने लंबे थ्रेड में न जाने कितने बेस पेयर्स होंगे, लेकिन एक स्पीशीज मान लेते हैं ह्यूमन, तो उनका रेशो फिक्स होगा। एक स्पीशीज मान लेते हैं पीकॉक, तो उसका रेशो फिक्स होगा। हाँ, पीकॉक और ह्यूमन का सेम नहीं होगा, लेकिन सारे पीकॉक और सारे ह्यूमन का अपना फिक्स होगा। जुनैद, अंडरस्टूड? Okay, sir. Thank you. परफेक्ट। बच्चों, एनी डाउट इन दिस वन? Excuse me, sir. Yes, sir. यस, एक्सक्यूज। Sir, what is written that? What is that third bond? Sir, chemical backbone. Third bond. दिस वन? Yes. अरे Yes, sir. क्या पांडे जी, बार बार वही वही आ जा रहे हो तुम लोग। अरे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बेटा, बेस और लिखा तो है बिटवीन बेस एंड शुगर। बेस और शुगर के बीच के बॉन्ड का नाम है वो, पांडे जी। Okay, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. एनी मोर डाउट इन द Excuse me, sir. बोर्ड? हाँ बोलिए। सर वो जो वहाँ पे पर टर्न 10 बेस पेयर्स है, उसका डिस्टेंस 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो बिटवीन 2 बेस पेयर्स का 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग कैसा है? वही कर रहे हैं आयान। अरे 34 divided. अरे भाई 10 के बीच में 34 है, यदि टोटल 10 पेयर बेस पेयर की लेंथ 34 है, तो हर एक के बीच में कितना होगा? यस सर। 3.4. अयान क्या ही मजे ले रहा है। अरे 34 डिवाइडेड बाय 10 माय डियर। अग्री? यस सर। ओके, चलिए। सो आई होप देयर इज नो मोर डाउट। Agree? Yes, sir. So I am going to share this image. I'm going to share this image. Just a minute, MA3. I'm going to share the image and then I'm coming to some questions. और जिससे पूछो वही आंसर देगा।
Okay. You received the image, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये दोनों स्ट्रैंड को इक्वी डिस्टेंस पर बनाए रखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है, फ्लेक्सिबल भी है, जैसा कि वाटर में होता है, इतना फ्लेक्सिबल है, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि 100 डिग्री तक भी पानी को उबलने नहीं देता और बॉन्ड को टूटने नहीं देता। तो फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रांग भी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हनी अंडरस्टूड? Yes, sir. अनुजा, सुहानी, श्रावणी, संकेत, Yes, sir. Yes, sir. साई, खरडे, रौनक, प्रवीण, अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड Yes. साई? Yes, sir. अब देखो मैंने कितनी बात बढ़िया सी बोल दी और जीवन का विज्ञान भी बता दिया। जो जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही Strong. होगा। देखिए बात को समझिए, कई बार पाठक सब पढ़ाते पढ़ाते साइंस के साथ साथ लाइफ का भी साइंस बताते हैं कि जितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होगा। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब नई चीज सीख सकता है, रिजिड नहीं है, हर बार सीखने को तैयार है, हर बार थोड़ा सा बेंट होने को तैयार है, बस हमें सीखने की प्रवृत्ति रखनी है। हम ये सोचे कि हमें सब आता है, हम ज्ञानी हैं और रिजिड बने रहें तो हम स्ट्रांग नहीं होंगे, कभी भी टूट जाएंगे। आंधी तूफान आते हैं तो बड़े पेड़ टूट जाते हैं, बट आपने कभी हर्ब्स और श्रब्स को टूटते देखा है? ग्रास को टूटते देखा है? No, sir. No, sir. No, sir. Perfect. चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे ऑफलाइन सेशन होते ना तो बहुत मजा आती है पाठक सर के साथ पढ़ने। साइंस एक तरफ चलता, लाइफ साइंस भी एक तरफ पैरेलल चलता, बट डोंट वरी, आगे अपने मुद्दे पर। सो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, these हाइड्रोजन बॉन्ड्स make it flexible, keep the distance equidistance, and this makes it stable. Additional stability दे देता है। और डीएनए इसलिए भी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल नहीं है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. And thymine, which is present in DNA. Thymine is present in DNA. And uracil is present in RNA. RNA. This thymine gives an additional stability. समझदार लोगों ने कहीं लिख लिया होगा, thymine gives additional stability to DNA. Additional stability to DNA. Therefore, DNA is the better genetic material. Now, coming to the point, and these are the questions. एक आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सवाल पूछता हूं। सुहानी पाटिल, प्रवीण गांगुर्डे, प्रतीक्षा, मधुरा, मैथिली, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछता हूं बच्चों। अभी मैंने लिखा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट? Yes, sir. और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डू यू नो दिस? Yes, sir. तो मैथिली, मधुरा, मुझे ये बताओ बेटा, यदि कोई सिंगल स्ट्रैंडेड है तो सिंगल स्ट्रैंडेड में पेयरिंग कैसे होगी? ये AUGC जुड़ेंगे कैसे? डबल स्ट्रैंड में तो समझ में आ गया, बॉन्ड बनेगा। सिंगल स्ट्रैंड में कैसे बॉन्ड बनेगा? एनीवन? ओपन चैलेंज। मयूर, प्रतीक्षा, प्रवीण। सर यहाँ पैरेलल है तो वहाँ पे स्ट्रेट बनेंगे ना, मतलब अगर डीएनए में पैरेलल है तो वहाँ पे स्ट्रेट बनेंगे ना, अपसाइड डाउन में। कहाँ बनेंगे बताइए? अपसाइड डाउन सर, मतलब एक ऊपर एक नीचे सर। बहुत बढ़िया, इतनी ज्यादा ट्विस्टिंग हो जाएगी दोस्तों, बहुत बढ़िया, इतनी ज्यादा ट्विस्टिंग हो जाएगी कि आरएनए कुछ इस तरह से हो जाएगा और उसकी बॉन्ड ये बनने लगी।
अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट, Yes, sir. परफेक्ट। तो ये ध्यान रखिए, बिकॉज यू आर Crowd resonates. Crowd resonate. Crowd Crowd resonate. resonate. must know। और किसी से भी Crowd पूछना, 90% बच्चा आंसर नहीं दे पाएगा 11 का। यदि वो रेजोनेंस का नहीं है, वो 90% बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। यार ये बात तो सही है, तो सोचा ही नहीं कभी कि डीएनए में 80 पेयरिंग होती है और आरएनए में एयू की पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग होगी कहां पर? पेयरिंग इस तरह से होगी। चलिए, कुछ Excuse me, sir. यस, Sir, can you please take Pari Patil in? She's in the waiting room. चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल ऐसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, if DNA has length 680 angstrom, then the number of base pairs, instant answer, ट्वेंटी। कौन बोला? जुनेद। यार थोड़ा सोचो तो सही मेरे भाई, क्या ही जल्दी कर रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन दिया है बच्चों। सर 200। जी 20। सर 200। प्रवीण सर। परफेक्ट प्रवीण, बहुत बढ़िया। अरे भाई सिंपल सा सॉल्यूशन था। 34 एंगस्ट्रॉम होता है तो कितने बेस पेयर होते हैं बच्चों? 1. 10 बेस पेयर ना। अरे 34 एंगस्ट्रॉम पे कितने बेस पेयर हैं? 10. 10. 10, आपसे कितने पूछे गए हैं? 680। 680. 34 10 बेस पेयर, therefore 680 पे कितने होंगे? 680 into 10 divided by 34। 34 20 and 20 10, this is 200 base pairs। Glory, do you understand beta? Yes, sir. तो ग्लोरी दूसरा आंसर आपसे ही एक्सपेक्टेड है, सेकंड आंसर आप देंगी। यदि मैंने आपसे कहा if DNA has DNA has 140 base pairs, then what will be the length? Glory. Glory. Yes, sir. Sir, we have to do the same solvation. Since उल्टा करना है बस। 10 बेस पेयर पर कितनी सर लेंथ? 476। 476. सर 476। आपसे कितने बेस पेयर पूछे गए हैं? 140। तो 140 into 34 divided by 10। 14 4s are 56 5। 14 3s are 40, 48, 42 रे बाबा, 42 और 5। 42. Agree? Agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बच्चों समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आया पहले तो मुझे ये बताओ, प्लीज अनम्यूट करके बोलो। Anyone? Anyone? Anyone?
चलिए, मतलब आपको ये समझ में आ गया है, और ये समझ में आ गया तो तीसरा सवाल ये भी बनना चाहिए। अब तीसरा सवाल मैं पूछता हूं गिरीश पावरा। गिरीश, आर यू देयर? Yes, sir. Girish Pavra, the next question for you, if DNA has one zero two zero angstrom, then number of base pairs. Girish Pavra, Yes, sir. answer. अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है गिरीश भाई। डॉक्टर मोहाड़ीकर, Sir, may I? डॉक्टर मोहाड़ीकर, Yes, sir. आंसर। Sir, 30. 30. डॉक्टर मोहाड़ीकर, Sir, I answered 30. 30 सर। आंसर 30। अरे भाई सिंस Sir, 300. Sir, 300. 300. 300 34 एंगस्ट्रॉम पर 10 बेस पेयर, तो आपको कितना पूछा गया था? 1020 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 34, 34 से कट गया 30, सो आंसर शुड बी व्हाट? 300. 300. तीन सवाल पूछे आप, तीनों के भी जवाब नहीं आ रहे, क्या ही करो। एक और सवाल, एक और सवाल। अब की बार डॉक्टर टोडरवाल, आर यू देयर? Yes, sir. परफेक्ट। सो अगला सवाल डॉक्टर टोडरवाल आपसे। धीरे धीरे क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाएगा। द क्वेश्चन इज इफ DNA has 200 base pairs, then and A double bond T ratio G triple bond C is 1:1, then number of hydrogen bonds. डॉक्टर टोडरवाल, जिसको बनेगा जस्ट रेज योर हैंड, डोंट शाउट, जस्ट रेज योर हैंड्स और सेंड मी द आंसर, सेंड मी द आंसर इन चैट पर्सनल। दिनेश शिंदे, ओके, दिनेश शिंदे का आंसर आ गया। और कोई? दिनेश शिंदे कह रहे हैं 680, चेक करते हैं। अयान शेख, अयान शेख, Yes, sir. आंसर। एकता, हनी जैन, ईशान क्षीरसागर, आंसर दो बच्चों। आमिर जैदी 680, रौनक, पूरव, साक्षी, रोका, दो ही आंसर मेरे पास आए, देखते हैं। डीएनए 200 बेस पेयर्स हैं, 80 जीसी बराबर बराबर है क्योंकि रेशो 1:1, यानी जितने 80 है उतने ही जीसी। मतलब हाँ, जाहिर सी बात है 100 बेस पेयर्स क्या होंगे? ए डबल बॉन्ड टी, अग्री? Yes. एंड 100 ही क्या होंगे? जी ट्रिपल बॉन्ड सी। See. अब यदि ये 100 है, सिंपल सा था यार। अब यदि ये 100 है तो एक में 2 बॉन्ड, तो 100 में कितने बॉन्ड्स? 200. 200. 200 बॉन्ड्स।
अरे भाई ये 2 बॉन्ड हो गए ना, ये 3 बॉन्ड लिखा, डबल ट्रिपल ट्रिपल है तो सही। जब ये 100 है तो 200 बॉन्ड्स इसके हो गए, और इसके कितने हो गए? 300, तो टोटल कितना हो गया? 500. 500. क्या एक सवाल था यार शिंदे साहब, कहां से 680 आने लगा आप लोगों का? अरे समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है? मैंने कहा था ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ मैं जा रहा हूँ, बड़े बड़े इजी में मैं शुरू किया उसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में आया। सर वो 300 कैसे आया? 3 into 100. मधुरा, मधुरा, यस सर। पूरा क्या ही 3 बॉन्ड से इसलिए कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम लोग? अरे जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड है मधुरा? 3 3। और ऐसे कितने बेस पेयर्स हैं? 100 तो क्या होगा 100 into 3 बेटा? मधुरा समझी? हाँ सर। क्या ही कर रहे हो तुम लोग बेटा यार? ऐसे भाई जीसी जीसी मैंने आपको 100 दे दिए तो कितने बॉन्ड हो गए वो? 300. बोले यार क्या ही कर रहे हो मतलब। एक और सवाल, एक और सवाल। यदि मैंने आपको दिया if DNA has length, DNA has length 2380, 2380 angstrom, then number of bases बताइए। 700. 700 कौन बोला? Glory. ग्लोरी, ग्लोरी थोड़ा सा ध्यान से कर बेटा, सही तो जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से कर। सर 350. ग्लोरी सही जा रही है, थोड़ा सा पकड़ बेटा। Yes. ग्लोरी आपने जो निकाला 700 वो बेस पेयर्स की संख्या निकाली, am I right? Sir 1400. परफेक्ट। कौन बोला? Junaid. जुनैद। सिंपल था बच्चों, ग्लोरी आप बिल्कुल सही गई थी। 700 ग्लोरी क्या निकाले आपने? बेस पेयर्स, am I right? Yes sir. तो बेटा बेस पेयर है ना, और मैं तो बेस पूछ रहा हूं, एक पेयर में 2 होते हैं ना, तो 3400. Yes sir. एक पेयर में 2 होते हैं, तो यदि 700 बेस पेयर हैं तो आंसर कितना हुआ? 1400. 1400. आ रहा है क्या समझ में? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes sir. Yes. यकीन मानिए, वी आर सो लकी, वी आर रियली प्राउड रेजोनाइट्स दैट वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस which may ask in KVPY like examinations. No one is teaching at all. No one is teaching at all this type of question, at least in biomolecules. कहाँ रहा बायोमोलिक्यूल और कहाँ रही है अप्रोच? ये न्यूमेरिकल्स इन बायोलॉजी, not at all anyone is teaching. We are lucky, so please be concentrate, be focused. One more question. Should we go for the more questions? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Perfect, perfect. अब और क्वेश्चंस पे जाते हैं, तो मुझे क्या मिटा देना चाहिए? मुझे इसे मिटा देना चाहिए। सी क्वेश्चन देखते हैं अब, थोड़ा सा बदलता हूं मैं। यस,
Okay. If A double bond T and G triple bond C are alternatively arranged in a DNA of 1020 angstrom. 1020 angstrom. Then दो questions. Sir, what is the word after R? Pardon? What is the word after R? Alternatively arranged. वो कट रहा है ना थोड़ा सा. Yes. Just a minute. Can you see this now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Then total number of bases and total number of hydrogen bonds. निकालिए आंसर. So total number of hydrogen bonds is 2550. कौन बोला? Ayan, अयान. हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आए आपके? 2550. 550. 50 या 15? 50. और बेसिस कितने आए? हाँ 700 bases. 700 बेसिस. कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग. Sir, 600 bases. 900 basis. Sir, 600 bases. Sir, 600 bases. 1020 एंगस्ट्रॉम है. तो पहले तो ये निकाल लो कि टोटल बेस पेयर्स कितने हैं. 100. 34 एंगस्ट्रॉम होता है तो बेस पेयर्स होते हैं 10. आपको दिया गया है 1020. तो 1020 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 34. आंसर निकल कर आ गया आपका 300. 300. अब 300 तो बेस पेयर्स हो गए. अब 300 Bases are बेस पेयर्स हो 600. गए तो 150 हो गए ए एंड टी और 150 ही हो गए सी ट्रिपल बॉन्ड जी. अयान अग्री? Yes, sir. अग्री? Sir, 950 hydrogen bonds. अब 150 डबल है तो इस डबल का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन. तो 152 जा 300. 300. हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा? 450. 450. 450. तो टोटल आंसर कितना हो गया? 750. 750 750. 750 क्या हो गए आपके? hydrogen Hydrogen bonds. Hydrogen bond. तो पहली चीज तो गलत हो गई आपकी 2550. अयान अग्री? Yes, sir. ओके. दूसरा देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बेसिस. जब बेस पेयर निकल गए तो बेसिस कितने हो गए? 600. 600. 600 बेसिस हो गया.
एक भी सवाल सही नहीं कर पा रहे तुम लोग यार, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो दोस्तों। अयान बेटा समझ में आया क्या? यस सर। देखिए एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए आप, मैं बहुत लेट मी वेरी क्लियर, जीवन के 2 साल पढ़ने में सभी लोग लगा रहे हैं। एक रेजोनेंस का विद्यार्थी भी लगा रहा है और एक जो रेजोनेंस में नहीं पढ़ रहा वो विद्यार्थी भी लगा रहा है। हो सकता है एक लोकल क्लासेस में पढ़ के या एक रेजोनेंस में पढ़कर कहीं ना कहीं हम माइंडसेट अपना अलग और ऑरा बड़ा कर रहे हैं। डीएनए सब दूर पढ़ाया जाएगा, ये न्यूमेरिकल्स कहीं करा रहे होंगे तो मुझे बताइए, मैं पेन डाउन कर दूं। दिस मेक्स अ नेशनलाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप एक नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और मेहनत तो करनी है ना भाई, 2 साल पढ़ना तो है ही, तो क्यों नहीं सारा ज्ञान प्राप्त करें। और न जाने ये किस एग्जाम में आ जाएगा, कि वीपीवाई हो, सीटी हो, नीट हो एंड व्हाट नॉट, तो हमें तो सारा ट्रिक ही समझना पड़ेगा। डीएनए हर कोई पढ़ा रहा होगा, डीएनए एग्जाम में आएगा भी, डीएनए बुक में दिया भी होगा, लेकिन डीएनए पर बेस्ड क्वेश्चंस केवल कौन कर रहे हैं? रेजोनेंस। अब हो सकता है आपको ये भी बताई, जनता ये बताए क्या इतना फालतू का सर पढ़ाते रहते हैं, क्या इसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, नीट में नहीं आता। आई अग्री भाई, नीट में नहीं आता, लेकिन नीट में आ गया दोस्तों तो, क्योंकि मैंने तो 12th तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं उसमें तमाम टाइप में मैंने ये चीजें देखी, तमाम टाइप में ये क्वेश्चंस देखे। एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूं आपसे, जो केवल आप कर पा रहे हैं, इसीलिए रेजोनेंस बाकी से अलग है, इसीलिए रेजोनेंस का अपना एक क्लास है, इसलिए रेजोनेंस का अपना एक स्टैंडर्ड है। क्यों? बिकॉज वी आर डिलीवरिंग आवर बेस्ट। और मैं क्यों बार बार आपसे कहलवाता हूं कि वी आर प्राउड रेजोनाइट? मुझे पता है दोस्तों, मैं पिछले 5 सालों से जुड़ा हूं रेजोनेंस, मैं जानता हूं, बट मैं आपको वो फील क्यों दिला रहा हूं? बिकॉज यू आर नोइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा। सो अपने उस ऑरा से बाहर निकलो कि बस इतना पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, कहानी खत्म, टेक्स्ट बुक पढ़ी, सिलेबस हुआ, कहानी खत्म। नो, उस टेक्स्ट बुक का एक एक जर्रा जर्रा, एक एक शब्द हमारे दिमाग में बैठना चाहिए, उस ऑरा से बाहर निकलना है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को करने का ढंग अलग होता है। कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, हम भी वही करते रहे, टेक्स्ट बुक पढ़ी फुर्सत, टेक्स्ट बुक पढ़ी फुर्सत। नो भैया, टेक्स्ट बुक के बाहर भी दुनिया है, और जब उससे जुड़ी हुई है तो उसे क्यों ना जाने, वो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, कोई एग्जाम केवीपीवाई का नहीं निकला, नो प्रॉब्लम, बट हम उसकी तैयारी ही ना करें, ये तो अपने आप पर अन्याय है। जीवन में एक बार मौका मिला, उसको तो अच्छे से करें। अग्री दोस्तों? Yes, sir. Should I go for one more question? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Now I should remove this minor and major groove also. Question number 7, सारे टाइप के मैं दे दे रहा हूं आपको, ताकि आपको कोई भी सवाल आप फेल ना हो जिंदगी में। मेरा बस ये मकसद है, करो नहीं करो बाकी आपकी इच्छा। If A equals to 25%, then can you tell me cytosine? 25%, sir. 5%. 25, sir. इतना भी स्पीड में काम मत करो दोस्तों। 75 कैसे होगा? 75 तो हो ही नहीं सकता। अरे 25. 25, sir. 25, sir. सॉल्यूशन ए कितना दिया है बच्चों? 25. 25. तो जाहिर सी बात है, यदि ए 25% है तो टी कितना होगा? 25, sir. 25. तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 50. तो बचा कितना परसेंट? 50. 50. तो बच गया सी प्लस जी कितना? 50%। 50. तो सी 25 और जी 25, तो सी का आंसर कितना हुआ? 25. 25. एक और सवाल हो जाए सर Yes, आपके sir. Sir, voice lag है. अरे एक Sir. और हो जाए। If G Sir, voice lag हो रही है। 10%, Sir, voice lag हो रहा है. सर वीडियो लैग हो गया। if G equals to
Sir, your No, voice is wait. breaking. Wait. नेटवर्क इशू है, प्लीज वेट. ओके. इफ G इक्वल्स टू 10%, क्या आप मुझे pyrimidine बता सकते हैं? 50% सर. अरे भाई, G इक्वल्स टू 10, 50%. G इक्वल्स टू 10, तो C कितना? 10. तो GC मिलाकर कितना हो गया? pyrimidine is 80%. 20 तो 8 A प्लस T कितना हुआ? 20 80 80%. और आपसे pyrimidine पूछा है. pyrimidine कौन कौन से होते हैं? C and T. अग्री? अरे अग्री? Yes, sir. yes sir 10% और T 40%, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 50% 50%. अग्री दोस्तों? yes sir Yes, sir. Last question. If C equals to 5%, then क्या मुझे आप A बता सकते हैं? प्रतीक्षा 45. प्रतीक्षा तोतला, प्रतीक्षा परी, प्लीज आंसर. 50 sir. प्रतीक्षा. सर 45. सिंपल 45. कौन बोला? 45 sir 45. दिनेश सर. C 5 तो G 5. अग्री? yes अब C और G 10, तो A और T 90. 45 और A और T 90. अग्री दोस्तों? Yes sir. Yes, sir. yes sir Sir. That's all my dear. What I'm telling you again, please, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं दोस्तों. मैं आपको हाथ देने को तैयार हूं, उंगली पकड़ाने को तैयार हूं. मेरे साथ चलो. ज्ञान प्राप्त करने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ग्लोरी, व्हाट डू यू थिंक? डे 1 पर आप मुझसे मिली थी और आज कॉन्फिडेंस में कुछ फर्क है? ग्लोरी, Yes, sir. सच बोलो, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं. प्रवीण पूरा डे 1 पर आप मुझसे मिले थे प्रवीण, उसमें और आज में कोई फर्क है? Yes. साक्षी डोका, डे 1 पर आप मुझसे मिली थी और आज रेजोनेंस में आपको कुछ कॉन्फिडेंस में फर्क लग रहा है? Yes, sir. बच्चों सच कह रहे हो या मैं कह रहा हूं इसलिए बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं सर. Sir. वेरी गुड. तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़वाऊंगा. ये रेजोनेंस है, इट्स नॉट अ लोकल कोचिंग मार्क. यहां पर आपको बेस्ट डिलीवर किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, आपको हाथ पकड़ के समझाया जाएगा. बस पढ़ना आपको पड़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ाना पड़ेगा. नासिक की मेंटेलिटी जो लोकल से उससे ऊपर आना पड़ेगा, बोर्ड से ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम इन सब चीजों को सीख पाएंगे. और मैं समझता हूं इतना टफ भी नहीं है. प्रवीण गांगुर्डे, क्या लगता है? क्या बहुत टफ है क्या चीजें? परी पाटिल, मयूर वारे, मैथिली, व्हाट डू यू थिंक? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. yes sir yes sir Yes sir. So be attentive, be smart enough to solve this type of questions. Perfect? Any Yes, doubt sir. in this? no No, No, sir. No, sir. No, sir. Don't miss today's session by RK Kalani group. I personally visited the center and I suggest you all
to take the admission in RK Kalani. The best. एक रोड क्रॉस किया कि कॉलेज अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, कंप्यूटर लैब मैंने देखी है, आईटी की लैब मैंने देखी है। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं और स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी प्लेन लेना है सब्जेक्ट, एंड मैं प्लेन सब्जेक्ट क्यों बोलता हूं, ताकि 12th का बॉदरेशन बहुत ज्यादा नहीं रखना, हमें सारा फोकस बच्चों नीट पे करना है। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि नीट निकलेगा ही, और सिंपल प्लेन सब्जेक्ट्स लीजिए और एडमिशन लेके कंफर्म। कभी जरूरत भी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ है, आपने एक रोड क्रॉस किया एंड यू विल गेट द कॉलेज। बहुत अच्छा कैंपस है, मैं तो बहुत लॉन्ग विजन में उसके साथ एसोसिएशन देख रहा हूं। तो मेरा सबको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होगा कि यदि ले लिया है, 2 ही सजेशन मैं दूंगा, ग्लोबल में है और यहाँ पर। जिसको बाइफोकल लेना है वो ग्लोबल में चला जाए। मैं सजेस्ट प्लेन के लिए करता हूँ, स्पेशली बायोलॉजिस्ट को प्लेन सब्जेक्ट के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर एडमिशन ले लेना चाहिए। जिन्होंने विजडम में लिया कोई बुरी बात नहीं है, विजडम भी लीजिए। वहां 2 दिन जाने वाला चक्कर थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, थकावट ज्यादा आ सकती है। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा विजडम भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे हमारे टाइप हैं। बट आरके कालानी, आई इम्प्रेस्ड personally with their teachers, with their members. I personally influenced. Same like global. So I strongly recommend either for global or for this one. Rest, your choice, your wish. Please attend today's session. Perfect. All the best. See you in the very next class. 7 बजे तैयार रहिए. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. All the best. Thank you, sir. All the best. Sir, please upload the photo. Yes, 100%. All the best.